اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 544 ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے عقل مندی کی کہ لوٹ کر اسی علاقے میں آ گیا جہاں اس کے اور ہمارے ملنے کے امکانات زیادہ تھے۔ میں نے غالب کی بات سے اتفاق کیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا، محسن کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہاں آنے کے بعد کسی موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کرتا۔ غالب نے کہا، موقع یا تو عقل تلاش کرتی ہے یا تقدیر فراہم کرتی ہے۔ آصف جان نے کہا، میں نے تو محسن کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، لیکن اس کے دونوں ساتھیوں کے چہرے اجنبی تھے۔ انہوں نے فرار ہونے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی لیکن جہاں وہ پکڑے گئے تھے وہاں سے گاڑی کے ساتھ فرار ہونا ممکن نہیں تھا۔ ہمارے پاس گھوڑے تھے، ہم انہیں جنگل ہی میں گھیر لیتے اور شاید یہ بات ان کی عقل میں بھی آ گئی تھی۔ آخر انہوں نے مقابلہ کیوں نہیں کیا، فائرنگ کیوں نہیں کی؟ گاڑی میں محسن کے علاوہ 2 آدمی تھے، آصف جا بولا۔ ان میں سے ایک تو ڈرائیونگ کر رہا تھا، وہ فائرنگ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے کو محسن کی فکر ہوگی کہ موقع سے فائدہ اٹھا کے وہ بھاگ نہ جائے۔ پھر میرے ساتھ 4 سپاہی تھے جو چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ گاڑی کا ٹائر بریسٹ ہو گیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ مقابلہ بے سود ہوگا۔ اسلحہ کیا تھا ان کے پاس؟ غالب نے کہا، ان دونوں کے قبضے سے ریوالور ملے تھے، کار میں ایک مشین گن بھی تھی۔ اگر وہ چاہتے تو ایک راؤنڈ میں تم سب کو صاف کر دیتے اور نکل جاتے، میں نے کہا۔ آصف جان اقرار میں سر ہلایا۔ محسن نے انہیں ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس نے دونوں کو سمجھایا کہ بلا وجہ 5 پولیس والوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کی ضرورت نہیں، یہ بہت سنگین واردات ہوگی۔ اس کے علاوہ آس پاس کے سارے علاقے میں پولیس موجود ہے، وہ فائرنگ کی آواز سن کر آ جائیں گے۔ محسن نے بڑی دانش مندی سے کام لیا۔ وہ غیرت ہے کہ وہ مان گئے، وہ تو بڑے خون کے پیاسے لوگ ہیں۔ محسن کے اعتماد نے انہیں مروا دیا، آصف جا بولا۔ محسن نے کہا کہ گڑ سے مرنے والوں کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم شریف آدمی نظر آتے ہیں، باتوں سے پولیس کو قائل بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ڈاکو نہیں ہیں، معزز لوگ ہیں، اور پولیس باتوں سے قائل نہ ہو تو نوٹوں سے مان جاتی ہے۔ وہ مان گئے اور پھنس گئے۔ پہلے ان میں سے ایک ہاتھ اٹھا کے باہر آیا، تھانے دار صاحب گولی مت چلانا، ہم شریف لوگ ہیں۔ میں نے کہا، پھر تم نے بھاگنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ اس نے لجاجت سے کہا، نہیں جناب، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میں نے تو گاڑی موڑتے ہی روک لی تھی۔ غلط فہمی کے بچے، بے وقوف سمجھتے ہو مجھے؟ میں نے کہا، تم اس وقت رکے ہو جب بھاگنے کے قابل نہیں رہے، باہر نکلو اب۔ دوسرا شخص بھی بڑی مظلوم صورت بنا کے اترا، آپ تو ایسی ناراض ہو رہے ہیں تھانے دار جی، ہمارے پاس کون سا چوری کا مال ہے، وہ بھی برآمد ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ابھی ایک بندہ ہے گاڑی میں، اس نے پاؤں میں مہندی لگائی ہوئی ہے، وہ جی ذرا بیمار تھا۔ پہلے نے کہا، اوے باہر لاؤ اسے، ہم بھی دیکھیں کیا بیماری لگ گئی ہے اسے۔ ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج ہے پتر، 13 نمبر کا نسخہ ہے۔ میں نے کہا۔ مجبوراً اس نے محسن کو باہر آنے کے لیے کہا، آ جاؤ یار تم بھی، تاکہ تھانے دار جی کا شک دور ہو جائے۔ محسن جب باہر آیا تو واقعی بیمار لگتا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو مجھے اس کی صورت آشنا سی لگی۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ اس کی تصویر میں نے اخبار میں بھی دیکھی تھی، اور اخبار اس وقت بھی میری جیب میں موجود تھا۔ تاہم فوری طور پر میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں پہلے یہ جاننا چاہتا تھا کہ محسن کے دونوں ساتھی کون ہیں۔ کون ہو تم لوگ؟ میں نے ٹارچ کی روشنی ان کے چہروں پر ڈال کر کہا۔ ہم نے کہا نا جناب، ہم شریف آدمی ہیں۔ میں نے کہا، صورت سے تو کوئی چور نظر نہیں آتا، لیکن شریف آدمی آدھی رات کو جنگل میں گاڑی لے کر نہیں پھرتے۔ گاڑی کس کی ہے؟ ہماری ذاتی گاڑی ہے۔ دوسرے نے کہا، کاغذات ہیں جن سے یہ ثابت ہو جائے کہ گاڑی تمہاری ہے؟ میں نے کہا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت ہمارے پاس تو نہیں ہے کاغذات۔ تو پھر کہاں ہیں؟ میں نے کہا، گھر سے منگوائے جا سکتے ہیں۔ دوسرے نے اعتماد کے ساتھ کہا، کہاں ہے گھر؟ تم مجھے یہاں کے رہنے والے تو نہیں لگتے۔ پہلے نے نفی میں سر ہلایا، ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، شہر میں رہتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، کوٹھی میں تم ساتھ چل کر کوٹھی دیکھ سکتے ہو، ابھی تم میرے ساتھ چل کے حوالات دیکھو، کوٹھی اور کوٹھا کل دیکھیں گے۔ میں نے کہا، اور سپاہیوں کو حکم دیا، پکڑ لو ان سب کو۔ تھانے دار جی، یہ آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں، پہلے نے فریاد کے انداز میں کہا۔ میں نے کہا، تلاشی لو ان شریف زادوں کی۔ انہوں نے سخت احتجاج کیا، مگر سپاہیوں نے ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے ریوالور نکال لیے۔ یہ ہے تمہاری شرافت کی سند؟ میں نے گرج کر کہا، ہمارے پاس ان کے لائسنس ہیں۔ کہاں؟
घर पर होंगे। कोठी में। मैंने तन से कहा। कौन हो तुम लोग? गाड़ी में असला लेकर क्यों फिर रहे थे? और ये कौन है? ये भाई है हमारा। पहले ने मोहसिन की तरफ इशारा किया। क्या ये गूंगा है? वो जवाब नहीं दे सकता, मैंने कहा। मोहसिन ने फकत ताईद में सर हिलाया। वो सख्त मुश्किल में पड़ गया था। एक तरफ पुलिस के हाथों गिरफ्तारी का डर था, तो दूसरी तरफ दुश्मन के हाथों मारे जाने का। दुश्मन के साथ जाने में उसके बच निकलने के इम्कानात ज्यादा थे। चुनांचे उसने अपने दुश्मनों के बयान को झूठा नहीं कहा। हम यहाँ किसी को तलाश करने आए थे, पहले ने कहा। इस जंगल में आधी रात को? हम जंगल से गुजर कर जा रहे थे जी, जाना हमें आगे था। हमारे बहन बहनोई सुबह इधर आए थे। हम रात तक उनकी वापसी का इंतजार करते रहे, फिर गाड़ी लेकर निकले। उनकी तरफ से बहुत फिक्र लाहक हो गई थी। उन्होंने इतनी देर क्यों की? मैं समझ रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनके झूठ का एतराफ खुद उन्हीं की जबान से कराना चाहता था। मोहसिन को पहचान लेने के बाद मैं चाहता था कि उसकी मदद करूं, लेकिन सबके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता था। और मैं ये भी जानना चाहता था कि वो दोनों मोहसिन के साथी और दोस्त हैं या उसके दुश्मन। मोहसिन की परेशानी और खामोशी से कुछ पता नहीं चलता था, और ये सवाल उसे बराह रास्त नहीं किया जा सकता था। मैंने कहा, कौन है तुम्हारे बहन और बहनोई? वो बिजनेस है उनका मुंबई में, पहले ने कहा। तुम दोनों आपस में भाई हो? हाँ जी, मेरा नाम है मोहन और ये मुझसे छोटा है सोहन, दूसरे ने कहा। और ये? मैंने मोहसिन की तरफ इशारा किया। तुम कौन हो सुअर के बच्चे? इधर आओ मेरे सामने। मोहसिन खामोशी से आगे आ गया। मैं इनके जीजा जी का भाई हूँ और मेरा नाम श्याम कुमार है, उसने बड़े सुकून और एतमाद के साथ कहा। आप बिला वजह हमारा वक्त ज़ाया मत करें। अगर कोई मदद नहीं कर सकते तो हमें जाने दे। आपने पहले ही टायर ब्रेस्ट करके अच्छा नहीं किया। मोहसिन के झूठ पर मैं हैरान रह गया। मैंने आम थानेदारों की तरह मोहसिन की जबान तरादी पर मुश्तइल होकर उसे गालियां देकर उसके 2 बैद रसीद किए। ये गूंगा एकदम बोलने लग गया। हमें बता रहा है कि हमने अच्छा नहीं किया। अबे जब हम बुरा करेंगे तो पता चलेगा। सब इंस्पेक्टर, हमको क्या समझाया आखिर तुमने? क्या हम चोर उचक्के हैं? हम इज्जतदार कारोबारी लोग हैं, मोहसिन ने बरहमी से कहा। तुम जैसे हमारे पास मुलाजिम हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं है। मैंने उसको और गालियां देते हुए कई बार छड़ी रसीद की। जबान चलाता है, भौंकता है कुत्ते। अभी तुझे भी अंदाजा नहीं है कि तेरे जैसे कितने इज्जतदारों की खाल एक रात में उतार चुका हूं मैं। अब गाड़ी में से उतरने वाला पहला शख्स आगे बढ़ा। उसने महसूस कर लिया था कि सूरत-ए-हाल खराब से खराब तर होती जा रही है। थानेदार जी, आप 1 मिनट मेरी बात सुने, उसने बड़ी लजाजत के साथ दरख्वास्त की। सिर्फ 1 मिनट, जो कहना है यहाँ कहो, सबके सामने, मैंने गुर्रा कर कहा। आप बात को समझने की कोशिश करें जनाबे आली, मेरी अर्ज सुन ले, फिर आपको इख्तियार है। उसने मेरे पांव पकड़ते हुए कहा। यह देखने के लिए अलहदगी में वो क्या करता है। मैं घोड़े से उतर गया। अगर उनमें से कोई अपनी जगह से हिले तो गोली मार दो, मैंने सिपाहियों से कहा। सर जी, इस बेवकूफ़ की बातों में ना जाएं, उसने कहा। वो बीमार है, इसलिए दिमाग खराब हो रहा है उसका, उसने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा। दिमाग तो ऐसे ठीक हो जाता है, मैंने चुटकी बजाकर कहा। छोड़ें जनाब, आपस की बात है, आप हमें जाने दें। हम गलत नहीं कह रहे हैं। हम आपको इस वक्त अपने साथ ले जाकर सब कुछ दिखा सकते हैं। गाड़ी के कागजात, अपनी कोठी, कारोबार की जगह। 10 आदमी हमारे जामन निकल आएंगे, जो हमारे कहने से आपके सामने 1-1 लाख रख देंगे। अच्छा, मैंने दिलचस्पी से कहा। यह बात है? 1 लाख तो बहुत होते हैं, 1 लाख तो वाकई बहुत होते हैं, लेकिन आप हमारे मामले में टांग ना अड़ाएं तो आपको मिल सकते हैं। कब? इसी वक्त? अभी तो नहीं, लेकिन सुबह बैंक खुलते ही। इस वक्त हम बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं, हमारा वक्त बहुत कीमती है। अब मैंने एकदम तुरप का पत्ता उसके सामने डाल दिया। तुम में से एक को मैं पहचानता हूँ। किसको पहचानती हैं आप? वो परेशान नजर आने लगा। इस गूंगे बहरे को जिसे तुम बीमार कहते हो। वो श्याम कुमार हरगिज नहीं है, वो मुसलमान है, मोहसिन नाम है इसका। वो यूं उछला जैसे अचानक मैंने उसके कान पर रखकर पिस्तौल दाग दिया हो। मैंने इस शदीद रद्द-ए-अमल को नोट किया, मगर अनजान बन गया। थानेदार जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने मुस्कुरा के सरगोशी में कहा। मेरे सामने ड्रामा मत करो, इसलिए कि मैं खुद भी ड्रामा कर रहा था। ड्रामा? कैसा ड्रामा? मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। तुम सब पाकिस्तानी हो और यहाँ की पुलिस भी तुम्हें उतना ही दहशतगर्द समझती है जितना पाकिस्तान की, मैंने कहा। लेकिन हम दहशतगर्द नहीं हैं, मैंने कहा। आहिस्ता बोलो, मुझे सब मालूम है कि तुमको मुजरिम और दहशतगर्द बनाया गया है। दर हकीकत तुम सच्चे पाकिस्तानी और सच्चे इंसान हो। तुम लोग वतन के दुश्मनों के दुश्मन हो, चुनाचे वो तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरे लहजे ने उसकी हौसला अफजाई की। उसने इकरार में सर हिलाया, मगर डरते डरते।
تم بالکل فکر مت کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے کہا بس مجھے یہ بتا دو کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، ہم تم پر کیسے اعتبار کر لیں۔ اس نے عیاری سے کہا میں تم کو اور اس دوسرے شخص کو پہچان نہیں سکا۔ میں نے رازدارانہ سرگوشی میں کہا کیا تم سکندر بخت ہو؟ اس نے ایک نظر مجھے بے یقینی سے دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ ہاں، گویا میرا اندازہ درست تھا۔ میں نے کہا اگر تم سکندر بخت ہو تو پھر تیسرا آدمی صرف غالب ہو سکتا ہے۔ اسے یقین آ گیا کہ میں واقعی ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا خیال چھوڑ چکا ہوں۔ اس احمق نے یہ نہیں سوچا کہ جب میں محسن کو پہچانتا ہوں تو پھر سکندر بخت اور غالب کو کیوں نہیں پہچانتا۔ تصویریں تو تینوں کی اخبارات میں ایک ساتھ شائع ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک اندازہ کیا تم نے سب انسپیکٹر، اس نے گہری سانس لے کر اعتراف اور تعریف کے انداز میں کہا۔ میں مانتا ہوں کہ میں ہی سکندر بخت ہوں۔ ابھی جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ میرا ہاتھ گھوم کر اس کے منہ پر پڑا۔ وہ اس عملے کے لیے تیار نہیں تھا، چنانچہ لڑکھڑا کے پیچھے گر گیا۔ میں نے اسے ایک سے ایک منتخب گالیاں دیتے ہوئے ٹھوکریں ماری۔ سالے جال سال دھوکے باز فریبی، آنکھوں میں دھول چونکتا ہے ہماری، ہم سب کو پہچانتے ہیں۔ میں نے کہا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے درمیان کیا بات ہو رہی تھی، اور اب اچانک اس مسئلے پر مذاکرات کی ناکامی سے صورتحال ایک دم پلٹ گئی ہے۔ محسن اور اس شخص کا دوسرا ساتھی حیران پریشان کھڑے سب دیکھ رہے تھے، مگر کچھ کرنے سے قاصر تھے۔ ایک ریوالور میرے ہاتھ میں تھا اور 4 بندوقوں کے دہانے ان کی جانب اٹھے ہوئے تھے۔ پکڑ لو ان سب حرام زادوں کو، الگ الگ باندھ کر ڈال دو اسی گاڑی میں، میں نے حکم جاری کیا۔ انہوں نے مزاحمت کی واجبی سی کوشش کی، مگر میرے ماتحت سپاہی بہت مستعد ثابت ہوئے۔ انہوں نے تینوں کو بندوقیں مار کے گرا دیا اور رسیوں سے باندھ دیا۔ جانت کڑیاں تو ملتی نہیں ہیں، اب مجرموں کو پکڑنے اور باندھنے کے لیے رسی بھی خود ہی فراہم کرتے ہیں۔ تھانے دار میں سمجھ لوں گا تو اسے، پہلے والے شخص نے کسی زخم خوردہ سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا۔ تجھے معلوم نہیں تو نے کس پر ہاتھ ڈال دیا ہے، دوسرے نے چلا کر کہا۔ ہم نے تیری پیٹی نہ اتروا دی تو کہنا۔ وہ چلاتے اور دھمکیاں دیتے رہے، مجھے میرے انجام سے ڈراتے رہے اور خطرناک نتائج سے ڈراتے رہے۔ سپاہیوں نے انہیں باندھ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ وہ مجرموں کو رسی سے باندھنے کے ماہر ہیں، کوئی مجرم کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لے رسی توڑ سکتا ہے نہ کھول سکتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کی بعض اوقات انگلیاں تک نہیں ہلا سکتا۔ زیادہ خطرناک مجرموں کو وہ رسی میں ایسے جکڑتے ہیں کہ اگر کوئی زور لگائے یا ہاتھ پیر موڑے تو گردن میں رسی کا حلقہ تنگ ہونے لگتا ہے اور وہ خود اپنے آپ کو پھانسی دینے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ دم ساد کر پڑے رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کار کا ٹائر بدل دیا گیا تھا، مگر میرے سپاہی ڈرائیونگ نہیں جانتے تھے۔ ڈرائیونگ خود میں نے عرصہ پہلے کی تھی، چنانچہ میں نے اس شخص کو ڈرائیونگ پر مجبور کیا جو پہلے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ ریوالور لے کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا گھوڑا ایک سپاہی کے حوالے کر دیا اور ان سے کہا کہ وہ کار کے دونوں جانب ساتھ ساتھ چلیں۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ ان تینوں کی ایک دوسرے کے سامنے کیا پوزیشن ہے۔ محسن کو اپنے ساتھ لے جانے والے دونوں افراد کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ محسن کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ہی کبھی خود کو سکندر بخت یا غالب نہ کہتے۔ محسن کی پریشانی اور خاموشی سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ اصل بات کچھ اور ہے۔ اگر وہ محسن کے ساتھی ہوتے تو خود محسن ان کی وکالت کرتا اور مجھے یقین دلانے کی کوشش کرتا کہ وہی سکندر بخت اور غالب ہیں، مگر اس نے نہ تائید کی تھی نہ تردید۔ وہ دونوں محسن کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ انہوں نے دھمکیاں تو بہت دی تھی، مگر کسی بہت بڑے آدمی کا نام نہیں لیا تھا۔ انہوں نے اپنا اصل نام پتہ کچھ نہیں بتایا تھا، صرف یہی کہتے رہے تھے کہ صبح سب معلوم ہو جائے گا۔ صبح کون آ کے توپ چلائے گا یہ وہ کیسے بتا سکتے تھے؟ اگر وہ تردید کرتے کہ وہ محسن کے ساتھی نہیں ہے تو ان کا بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ انہیں اپنی اصلیت ظاہر کرنے کی صورت میں اپنے مقصد سے دستبردار ہونا پڑتا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، محسن تو پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ دوست نہیں دشمن ہے اور کسی کے اعلیٰ کار ہے، مگر یہ بات انہیں معلوم نہیں تھی اور وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ محسن ان کے دامے فریب میں گرفتار ہو چکا ہے اور بلاخر انہیں سکندر بخت اور غالب کے پاس لے جائے گا۔ خود محسن نے ان کی یہ خوش فہمی برقرار رکھی تھی کیونکہ وہ بھی پولیس کے مقابلے میں ان سے نمٹنا آسان سمجھتا تھا۔ آسان کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پولیس کو اپنے وسائل اور اپنی قوت کے باعث زیادہ خطرناک دشمن سمجھا جا سکتا ہے۔ پولیس کے مقابلے پر دوسری طرف صرف 2 افراد تھے۔ شاید محسن ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانے کی سوچ ہی رہا ہوگا کہ درمیان میں پولیس آ گئی۔ محسن اس لیے خاموش رہا کہ وہ خود پولیس کی قید سے آزادی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دشمن با اثر اور قوی تھے۔ ان کا دعویٰ ٹھیک تھا کہ رات کو وہ کچھ نہیں کر سکتے، مگر صبح انہیں کوئی قید میں نہیں رکھ سکے گا اور میری پیٹی اتر جائے گی۔ خود محسن نے اپنی آزادی کی سب امیدیں صبح سے وابستہ کر لی تھی۔
जब असल लोगों को मालूम होगा एक मामूली सब इंस्पेक्टर ने उनके काम में रखना डाला और उनके हुक्म के गुलामों को पकड़ लिया तो वो सिर्फ डोरी हिलाएंगे, और ऊपर से किसी बड़े अफसर का हुक्म सादिर होगा कि सबको छोड़ दो और खुद वजाहत करने के लिए हाजिर हो जाओ कि क्यों ना तुम्हें मुअत्तल कर दिया जाए। सुबह सिलसिला फिर वहीं से शुरू होगा जहां से टूटा था। ना वो जानते थे कि मोहसिन के दिल में क्या है, ना मोहसिन को अंदाजा हो सकता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वो सब अपने अपने तौर पर जो कुछ सोच रहे थे गलत सोच रहे थे, लेकिन ये बात जानते नहीं थे। थाने पहुंचकर मैंने हुक्म दिया, इन दोनों को अलग अलग बांध के रखो, इनको हवालात में डाल दो। मैंने मोहसिन की तरफ इशारा किया और दूसरे को, एक सिपाही ने कहा, उसको साथ वाले कमरे में रखो। मैंने कहा, ये लोग एक दूसरे से बात ना करने पाए, मसला इस तीसरे का है, इसको अपने घर में बंद कर दें जी। नहीं, मैं इसको गर्दावर साहब के हवाले कर देता हूँ, उनकी हवेली के किसी कोने में जरूर जगह होगी, वरना इसे बैलों के साथ बांध देंगे। मैंने कहा, चल बेटा गाड़ी चला। थानेदार गाड़ी चलाने वाले ने मेरे इंतजाम के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। ये अच्छा नहीं कर रहा तू, मैं फिर बताता हूँ। मैंने उसकी गुद्दी पर हाथ मारा। कितनी बार बताएगा? उसने गाड़ी चलाते हुए पलटकर गाली दी। तू क्या चीज है आखिर? दो कोड़ी के थानेदार तेरे जैसे तो त्रिवनी के कुत्ते हैं, उसके कदमों में लौटते हैं, उसका थूका हुआ चाटते हैं। त्रिवनी क्या चीज होती है? कोई कुत्ते की नस्ल है ये भी? मैंने कहा, भौंकने वाला है कि काटने वाला? क्या तेरे बीवी बच्चे नहीं है? अपना नहीं तो उनका ख्याल कर। उसने मुझे समझाने की कोशिश की। त्रिवनी एक हाथी है और तू उसके मुकाबले में चिऊंटी। मैंने उसकी बात काट दी, मगर क्या चिऊंटी हाथी की मौत का सबब नहीं बनती? अब मोहसिन सामने नहीं था तो उसने त्रिवनी का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश की थी, और इसमें कोई शक नहीं कि मैं डर गया था। त्रिवनी मेरी और मेरे बीवी बच्चों की बोटियां अपने कुत्तों के सामने डाल सकता था और मेरे साथ इससे भी बुरा सलूक कर सकता था। लेकिन उस वक्त मैंने कहा, अब मेरे साथ जो भी हो, तेरा ये त्रिवनी मुझे सूली चढ़ा दे, मगर मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। सुबह अफसर छोड़ दें तो ये उनकी मर्जी। आधी रात के वक्त गर्दावर मुझे देखकर हैरान रह गया। क्या बात है थानेदार जी? वो आंखें मलते हुए बोला, एक बंदा लाया हूँ, इसे आज रात संभाल कर रखें। मैंने कहा, सुबह मैं ले जाऊंगा। कौन है ये? गर्दावर ने हैरान होकर कार की तरफ और फिर मेरे कैदी की तरफ देखा। यह असला लेकर जंगल में फिर रहे थे। इन्होंने भागने की और मुझे धोखा देने की कोशिश की। जब पकड़े गए तो मुझे धमकियां दे रहे हैं कि सुबह मेरी ऐसी की तैसी करवा देंगे। मेरे ख्याल में ये वही डाकुओं का गिरोह है जिसने इधर बस्ती में बहुत मुसीबत डाल रखी थी। इन्हीं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर तरफ मौजूद है, तो इनको थाने में क्यों नहीं रखा? गर्दावर बोला, थाने में दो को रखा है अलग अलग, ये उनका हेड मालूम होता है। मैंने कहा, बकवास करता है ये थानेदार। मैंने इसे बहुत समझाया मगर ये मेरी एक बात नहीं सुनता। वो चीख कर बोला, मुझे डर है कि कहीं इनके साथी थाने पर हमला ना करने आ जाएं, इसलिए सबको अलग अलग रखा है। आप जरा होशियार रहें। गर्दावर साहब, आप मेरी बात सुन लें, हम डाकू नहीं हैं। मैंने कहा, अच्छा जी, मैं चलता हूँ, इसका ख्याल रखें कहीं फरार ना हो जाए। बंदूक तो है ना आपके पास? बेशक गोली मार दें, मैं इसकी गाड़ी छोड़कर जा रहा हूँ। इससे पहले कि गर्दावर कुछ कहता मैं वापस हो गया। मुझे मालूम था कि बाद में क्या होगा और मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार था। अभी मुझे थाने पहुंचते हुए 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि गर्दावर का बेटा मानिक लाल आ गया। उसने मुझे गर्दावर का पैगाम दिया, आपको फौरन बुलाया है अब्बा ने। लेकिन मैं तो अभी आया हूं उनसे मिलकर। मैंने कहा, मुझे मालूम है, मगर उन्होंने कहा था कि बहुत जरूरी काम है, थानेदार जी को साथ लेकर आना। मैं बादल नुखासा उसके साथ गया। गर्दावर मुझे हवेली के बाहरी इंतजार में बेचैनी से टहलता हुआ नजर आया। वो मुझे सीधा अपनी बैठक में ले गया। उसने दरवाजा बंद करके कहा, थानेदार जी, ये तुमने क्या गजब कर दिया, ये किसको पकड़ दिया? मैंने कहा, डाकू हैं, मैंने बताया था। गर्दावर ने सर पर हाथ रखकर कहा, यार अकल के घोड़े को लगाम दो, क्यों अपनी थानेदारी के पीछे पड़े हो? मालूम है वो किसके आदमी हैं? त्रिवनी के। ये नाम उन्होंने भी लिया था। कौन है त्रिवनी? तुम त्रिवनी को नहीं जानते? गर्दावर ने बेयकीनी के साथ कहा। उसने मुझे बड़ी तफसील से बताया कि त्रिवनी कौन है और मेरे गलत इकदाम से मेरी नौकरी ही नहीं जिंदगी भी खतरे में पड़ गई है। मैंने डर के कहा, आपको यकीन है कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं? अरे यार, क्या डाकू इतने बेवकूफ होते हैं कि रात के वक्त कार में घूमते फिरे? गर्दावर ने कहा, मेरी मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मामले को संभाल लो। कैसे संभाल लूं? मैंने कहा, इन्हें छोड़ दो। गर्दावर बोला, छोड़ दूं? गर्दावर जी, अगर बाद में मालूम हुआ कि वो डाकू थे तो क्या होगा? आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। गर्दावर ने कहा, थानेदार, मेरी सारी जिंदगी का तजर्बा कहता है कि वो डाकू नहीं हो सकते।
चोर डाकू इतने एतमाद के साथ बात नहीं कर सकते। उसका कहना है कि अभी मेरे साथ चलो और चलकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लो, अभी पता चल जाएगा झूठ सच का। वो जानता है ना कि इस वक्त हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तुम उसकी गाड़ी में चले जाओ, तुम्हारे लिए डरने की कोई वजह नहीं। उसने तो कहा है कि थानेदार अकेला ही चला जाए और ये गाड़ी भी ले जाए, शहर जाके तस्दीक करे 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का। मैंने सोचकर कहा, मैं तो गाड़ी नहीं चला सकता। उसके साथ जो दूसरा आदमी पकड़ा था तुमने, वो ड्राइवर है, उसे ले जाओ। गर्दावर बोला, लेकिन मेरे ख्याल में ये सब गैर जरूरी है। वो झूठ नहीं बोल रहा है। उसने कहा है कि गाड़ी का नंबर चेक कर लो, मालूम हो जाएगा कि गाड़ी किसकी है। ये नंबर जाली नहीं है? नहीं, असली नंबर है, गर्दावर ने कहा। उसका कहना है कि तुम फोन करके पूछना चाहो तो वो 1 नहीं 10 नंबर दे सकता है। यहाँ टेलीफोन कहाँ है? वो यार नहीं है तो क्या हुआ, मेन रोड कितनी दूर है, तुम खुद फोन करके मालूम कर लो। अगर ऐसा ही है तो फिर वो यहाँ क्यों फिर रहे थे? क्या काम था उनका इस जंगल में, वो भी आधी रात के बाद? और उनके पास एक कागज का पुर्जा तक नहीं है अपनी शनाख्त के लिए। देखो थानेदार, तुम्हारी नौकरी कितनी है? 6 साल। मगर कुछ मत करो, 6 साल में तुम्हें तजरीबे ने कुछ नहीं सिखाया? तुमको इतना इल्म तो होना चाहिए कि पुलिस हर जगह टांग नहीं अड़ा सकती। कुछ लोग ऐसे होते हैं और उनके मामलात ऐसे होते हैं जो किसी कानून के दायरे इख्तियार में नहीं होते। कोई नहीं पूछ सकता उनसे कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तुम्हारे बड़े अफसर भी उनसे डरते हैं और गलती से उनके कारोबार की तरफ नजर उठा के नहीं देखते, क्योंकि ये बहुत ऊपर की सतह पर ताल्लुकात रखने वाले लोग होते हैं। पुलिस कमिश्नर तक इनका अपना आदमी होता है। क्या तरीवनी वाकई इतनी बड़ी चीज है? मैंने डर कर कहा, हाँ यार, अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, अकल से काम लो और इनको जाने दो। गर्दावर ने चिढ़ कर कहा, मुझे तो तुम्हारा ख्याल आ गया कि तुम अपने आदमी हो और आज तक किसी को तुमसे शिकायत नहीं हुई, इसलिए मैंने कहा कि पहले मुझे बात करने दो, सुबह तक ये मामला बहुत बिगड़ जाएगा। मैंने कहा, आपकी मेहरबानी गर्दावर जी, मैं आपकी जमानत पर इनको छोड़ देता हूँ। गर्दावर ने घबरा कर कहा, मैं कौन होता हूँ किसी की जमानत देने वाला, तुम मुझे बीच में मत लाओ। जब आप कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं तो फिर खुद क्यों डरते हैं? देखो यार, ये कानूनी मामलात हैं। कानूनी तौर पर मुझे इख्तियार हासिल है कि मैं किसी का जामन बनूं। ना मैं तुम्हें हुक्म दे सकता हूं और ना तुम किसी से जमानत तलब कर सकते हो। मैंने तुम्हें एक मशवरा दिया है जिसमें तुम्हारा फायदा है, मेरा कोई नुकसान नहीं, अगर तुम मेरे मशवरे के खिलाफ अमल करोगे। लेकिन मैं तो आपकी बात मान रहा हूं, आप जिम्मेदार आदमी हैं। कल खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो आप भी मेरी मदद करेंगे, सिर्फ आप जानते हैं। गिरदावर ने परेशान होकर कहा, यार ये बेवकूफ़ी की बातें मत करो, ऐसी वैसी कोई बात अव्वल तो होनी नहीं, होगी तो तुम पर कोई इल्ज़ाम कैसे आ सकता है? तुम साफ इनकार कर सकते हो कि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। इन लोगों को तुमने ना कभी देखा ना पकड़ो, समझ लो कि आज रात कुछ हुआ ही नहीं। ये लोग खामोशी से निकल जाएंगे, मैं इन्हें समझा लूंगा कि तुम्हारी दखल अंदाजी को एक गलत फहमी समझ कर नजरअंदाज कर दें और वो मान जाएंगे। 2 घंटे ही तो गुजरे हैं, अभी तो 1.5 घंटा भी नहीं हुआ। मैंने कहा, चलो ये और भी अच्छी बात है, 1.5 घंटे की ताखीर से इनका कोई काम नहीं बिगड़ा। कैसा काम? क्या आपको मालूम है वो यहाँ क्यों आए थे? नहीं यार, मुझे कैसे मालूम हो सकता है, लेकिन साफ जाहिर है कि यहाँ वो सैरो तफरी के लिए नहीं आए थे। होगा उनका कोई काम, हमें क्या। लेकिन उन्होंने यहाँ से जाने के बाद कोई वारदात की, गांव में डाका डाल दिया या किसी को कत्ल कर दिया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इत्मीनान रखो। हुआ तो मैं आपका नाम भी लूंगा। क्या आपने मुझे कहा था? गिरदावर घबरा गया। नहीं, मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारे मामला से। मेरी तरफ से तुम बाढ़ में जाओ, मत छोड़ो उन्हें, खुद भुगत लेना बाद में। इसे भी ले जाओ यहाँ से। मैंने कहा, अच्छा आप खफा मत हो, मैं अभी आता हूँ, जरा इसके साथी से पूछ लूँ। क्या पूछोगे उससे? अब तफ्तीश करोगे? मैंने कहा, तफ्तीश नहीं, तस्दीक करना चाहता हूँ। मुझे आप बताएं, उसने आपके सामने किसका नाम लिया है, किस किस का टेलीफोन नंबर बताया है? अगर ये सब सच होगा तो उसके दूसरे साथियों को भी ये नाम और फोन नंबर मालूम होंगे। गिरदावर ने कहा, ये ठीक है, मैं उससे कहता हूँ कि वो नाम और फोन नंबर लिखवा दे, तुम तस्दीक कर लो, या उसके साथियों से कहो कि वो भी नाम और फोन नंबर बताएं, फिर दोनों को आपस में मिला के देख लो। चंद मिनट बाद मुझे गिरदावर ने कागज के एक पुर्जे पर 3 नाम लाकर दिए। उनके सामने 6-7 फोन नंबर लिखे हुए थे, उनमें एक नाम तरीवनी का भी था। मैं वापस गया और मैंने वो नाम पते मोहसिन को दिखाए। ज्यादा बात करने के लिए वक्त नहीं था। मैंने उसे अपने बारे में भी सब कुछ बता दिया और तुम सब के मुतालिक भी जो कुछ मैं जानता था वो सब भी उसे सुना दिया। जाहिर है वो बहुत हैरान हुआ, लेकिन बिल आखिर उसे यकीन आ गया कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ।
मैंने उसे हवाला से निकाला और बाहर इंतजार करने को कहा। मेरा इरादा था कि उसे एक घोड़ा दूंगा और पुलिस की वर्दी, ताकि वो रातों रात इस इलाके से निकल जाए और उसे कोई ना रोके। मैं उसे रिवॉल्वर भी देना चाहता था और कुछ नकद रकम भी। उसको छोड़ने के बाद मैं दूसरे शख्स के पास गया और मैंने उससे वाजबी सी तफ्तीश की। मैंने उसके सामने चंद नाम लिए जो मुझे कागजी चिट पर लिखे हुए मिले थे और उससे पूछा कि क्या वो इन लोगों के टेलीफोन नंबर बता सकता है। उसने सब नंबर बिल्कुल ठीक बताए। 5 मिनट बाद मैं बाहर गया। मेरा ख्याल था कि मोहसिन मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन वो तो गायब हो चुका था। उसने मुझ पर एतमाद नहीं किया। अच्छा होता अगर वो घोड़ा ले जाता, रिवॉल्वर और पुलिस की वर्दी ले जाता। मैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारा इंतज़ाम कर रहा था, मगर पता नहीं क्यों उसने मेरी मदद की पेशकश से फ़ायदा नहीं उठाया। वो बाहर निकलते ही फरार हो गया। मैंने 10 मिनट के बाद थाने में बंद दूसरे कैदी को आज़ाद कर दिया। मैंने कहा, एक गलतफहमी की बिना पर मैंने तुम्हें डाकू समझ लिया था। वो बड़े फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया। अच्छा हुआ कि तेरी गलतफहमी जल्दी ही रफा हो गई। मैंने कहा, हम आंखें बंद तो नहीं कर सकते, इस इलाके में जो कुछ हो रहा है तुम जानते हो। उसने कहा, लेकिन तुमको देखना चाहिए कि शरीफ आदमी कौन है, ऐसे ही हर एक को नहीं पकड़ लेना चाहिए। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। वो तलखी से मुस्कुराया। तो और क्या अच्छा सलूक किया था तुमने? इतना मारने और जलील करने के बाद अब कहते हो? मैंने कहा, चलो यार, गलती हो गई थी, अब भूल जाओ। 1 घंटे में मालूम हो गया ना कि हम कौन है। वो अकड़ कर बोला, एक रात गुजर जाती तो तेरा अंजाम खराब हो जाता थानेदार। मैंने कहा, त्रिवेणी साहब से कुछ मत कहना, माफी तो मांगनी पड़ेगी तुझे उनके सामने जाके। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, अच्छा अगर मुकद्दर में जिल्लत भी है तो पेशी भी भुगत लेंगे, मगर तुम सिफारिश कर देना कि जैसे मुझे मालूम हुआ तुम किसके आदमी हो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मेरे दूसरे साथी कहाँ हैं? उसने बड़ी नखुवत से कहा। मैंने कहा, एक को गर्दावर साहब के घर में ठहरा दिया था मैंने। उसने गर्दावर से बात की, फिर गर्दावर ने मुझे समझाया। जब बात पकी हुई तो सारी बात का पता चला। मैं तो डर रहा था, मगर गर्दावर ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, इन सब को छोड़ दो। चुनाचे मैं यहाँ आ गया, अब तुम आज़ाद हो। उसने कहा, मेरे साथ यहाँ कोई और भी था? मैंने कहा, हाँ, उसे भी छोड़ दिया है मैंने। वो एकदम चौंका, कहाँ है वो? मैंने कहा, बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने मुझे एक फहश गाली दी और बाहर की तरफ लपका।